Welcome to Current Affairs with Jyotsna Sharma, my exclusive show that focuses on current affairs that relate to your happy, healthy and successful existence. Anything that interests you or intrigues you is well covered here. Today I am back again with another interesting and of course a celebrated topic today. In fact, I would say it's all about Gujarat's elections and the victory of the Bharatiya Janata Party. The landslide victory that they made had its own impact. Impact was so thundering that its sound and applause is being heard in America also. Reason being, there is a big chunk of Gujarati community in the United States of America. And the Gujaratis are taking a good pride in the success of BJP in Gujarat elections this year. BJP's landslide victory in Gujarat, 156 seats they won, which is the set record in the history of Gujarat elections that any party has ever won. So now I have two esteemed guests here in studio with me and one is online with me from India. Let me introduce you to them first and then we will talk about why is it so special and relevant to see this Gujarat election as a road to success for 2024 and why is there so much of interest in these elections by the Gujarati community. First and foremost, let me introduce you to my first esteemed guest who is sitting to my left, Mr. Amar Goswami. Thank you. Amarji, namaskar, welcome. Namaskar. And he is a Gujarati community leader and long-time associate and supporter of Gujarat BJP. And during his youth, he was the Gujarati, the BJP leader in Gujarat. And to my right is Mr. Nimesh Dikshit. Nimesh ji, namaskar. And Nimesh ji is a Gujarati NRI community leader, again has very deep and keen interest in Gujarat politics. And on the Zoom with me is Mr. Vikram Jain. Vikram ji, namaskar and welcome. Vikram Jain is of course the media convener, BJP Ahmedabad City Organization, is a businessman and of course he is the debate team member of Gujarat State BJP Organization. Warm welcome to all of you, all three of you. And of course, hearty congratulations on the grand success of BJP in Gujarat. Amar Goswami ji, बिल्कुल आपसे मैं अमर जी से शुरू करती हूँ. आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन अभी हुई थी न्यू जर्सी में जिसका आप हिस्सा थे एंड निमेश जी आप भी थे, आप सबों से मैं मिली वहाँ पर. इट वाज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन. इतनी बड़ी ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेशन एनआरआई यहाँ क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस गुजरात विक्ट्री? I will start with the glory of Gujarat. Every Gujarati NRIs, they are attached to Narendra Bhai Modi. They are attached to the development work of the Gujarat. All the Gujaratis' aspiration, what they were fulfilled in last 22 years. When we look at the history, back when Narendra Bhai first took the oath as a chief minister in 2002, and from rest, all the vibrant Gujarat events, Narendra Bhai's oath taking as a prime minister, all NRIs always participate. We celebrated, we have a event organized here as a Chai Pe Charcha. We did the NRI for Modi events, so many things throughout all the states, United States. We do not see separately Gujarat outside from US. All the Gujarati community is still attached to the motherland. Kya baat hai. Appreciate the answer when you say that the Gujarat is not away from, although you are in America, Yes. the Gujarat is still here. Exactly. Of course, a big chunk of Gujaratis here are successful entrepreneurs, businessmen, and of course have contributed a lot to the US economy. Yes. For that reason. Well, I'll go to Nimesh. Nimesh ji, you being an NRI supporter, have your own roots. कैसी कनेक्टिविटी है आपकी बीजेपी के साथ, जहाँ तक आप समझते हैं? अब तो बाहर बैठे हैं, राइट, अमेरिका में बैठे हैं. इतना इंटरेस्ट क्यों है बीजेपी के साथ या फिर इंडिया के इलेक्शंस में? क्या खास है गुजरात में? और So from childhood we are associated with BJP. At that time it was Jansangh. My father was in Jansangh. So as Amarji said, in Gujarat, movement towards BJP or Jansangh started in 70s. And since childhood we have been, grew up in that atmosphere. When we came to America, I think, and if you look at the history, I think Vajpayee's government was the first government who recognized NRIs, right? When they started that India Fund, when the Pokhran happened and the ban happened all across India from the outside countries,
it was Vajpayee's government who thought that NRIs will help. So since then, NRIs, emotions with BJP has been attached. So basically, a recognition was Recognition given by was the BJP government. given, yeah. That you have to say. And within less than 15 days, $3 billion were raised. Wow. So that is India Resurgent Fund or whatever that they called it. So at that time also, BJP being the first government to recognize NRI can support India. NRI the heart of India is still in NRIs. NRIs have gone away, but Right. the India still lives in Perfect. the heart. Yep. Thank And you. I would add one line here. Gujarati prosperous NRIs, right? They do heavy donation, all the Lok Kanyal works in Gujarat, and I think that work is attached with the BJP in a long term. So if you go to any small villages, you will see NRI support there in those villages, in the schools, education systems and all. So when NRI goes out and try to convince people to vote for the BJP, that has a more effect than a local people. Interesting. Thank you for both these inputs, inputs from both of you. I have Vikram Jain from India, Gujarat. Vikram जी, आपसे सीधा सवाल ये है, आप ग्राउंड में बैठे हैं, सारी जितनी अभी इवेंट्स हुई, जितना कैनवासिंग हुई, सपोर्ट आया, एनआरआईज की सपोर्ट को किस तरह से आप देखते हैं? अब तो ये सेलिब्रेटरी मोड में हैं आप लोग, लेकिन किस लहजे में, जैसा अभी दोनों यहाँ अमर जी ने बोला कि एनआरआईज की बात बाहर सुनते हैं गुजरात में लोग, तो आपका क्या कहना है, ये एनआरआईज की सपोर्ट को किस तरह से देखते हैं, खासतौर से कैनवसिंग के माहौल में जब इलेक्शंस सिर पे होते हैं और कैनवसिंग करनी होती है? सबसे पहले तो आपकी चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी एनआरआईज भाई बंधु हैं, मैं सबको वंदन करता हूं, नमन करता हूं। जो भी हमारे ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं। इस बार गुजरात के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एनआरआई मित्रों का बहुत बड़ा सहयोग रहा और लगभग 25,000 से ज़्यादा एनआरआई मित्र पूरे विश्व से गुजरात के चुनाव में आए और अलग अलग जगह पर उन्होंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया और उसके बारे में जानकारी दी। इसके लिए मैं सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। थैंक यू। हाँ बताइए। विक्रम जी, और सवाल है मेरे पास तो आपके लिए। हाँ, बताइए। पहला तो चलिए, आपने बोला कि एक सपोर्ट बाहर से आई है, सपोर्ट किस तरीके से आई है? एनआरआई मित्र यहाँ पर गुजरात में आए और वो गुजरात के सभी जिलों से आते हैं और सारा गुजरात के सभी जिलों से, हर एक जिले से और हर एक गांव से कोई ना कोई विदेश में बसता है। तो वो पहले हमारे यहाँ गुजरात में आए और उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण, विदेश नीति के कारण आज जो भारत का प्रभुत्व पूरे विश्व में बढ़ा है और भारत को एक अलग दृष्टिकोण से पूरा विश्व देख रहा है, उसके बारे में उन्होंने गुजरात के लोगों को जताया, बताया। तो गुजरात के लोगों को और भी विश्वास ज्यादा पैदा हुआ। ऐसे तो गुजरात हमेशा से ही भाजपा के साथ रहा है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सेवा कर रही है और 6.5 करोड़ गुजरातियों ने वापस से 5 साल के लिए हमें मैंडेट। धन्यवाद। मेरा अगला सवाल आप सभी से है। ये जो गुजरात की विन है, बहुत मेगा विन है, 156 सीट से लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जीतना एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। आई थिंक कांग्रेस ने बहुत साल पहले जो है 149 सीट्स लेकर के ये रिकॉर्ड बनाया था पहले 1985 कांग्रेस वन 149 सीट, राइट। तो ऑफ कोर्स रिकॉर्ड इज सेट। 2024 में किस तरीके का रिकॉर्ड सेट होने वाला है बीजेपी का? क्या ये रोड, गुजरात सक्सेस जो है, ये रोड जो बना है गुजरात की सक्सेस से, ये कहीं विक्ट्री की तरफ जा रहा है 2024 में? Definitely, अलग तरीके की विक्ट्री definitely BJP will win with the 400 seat in the next Lok Sabha election in 2024, and that route will go through the Gujarat. In last 2 Lok Sabha terms, we gave 26 out of 26 seats from Gujarat. So definitely this massive mandate from Gujarat is a sign for the 2024. थैंक यू। निमेश, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या स्ट्रैटेजी लगती है आपको? देखिए, ऐसा है कि लॉस भी हुआ है बीजेपी को, अगर आप देखें हिमाचल के इलेक्शंस में, उसके बावजूद आई थिंक वो हार को आपने नीचा कर दिया, छोटा कर दिया ये जीत के सामने।
तो थोड़े इनपुट्स उस एंगल से दीजिएगा. So basically, when you are asking for 2024, Right. so if you're looking for 2024, then you have to look at the vote share. So in all three, MCD or Himachal or Gujarat, the vote share has increased, right, for in the election. So that is what is going to reflect in 2024. So basically MCD Whether- elections in Delhi, वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा था, आप ये कह रहे हैं. Yeah, हिमाचल में भी little- वोट शेयर ज्यादा था, yeah, little बट one हार per- गए. Yeah, हार गए is fine because it depends. Vote share is the total vote share of the whole state. Right. That is what is going to impact 2024. 100%. Right? The vote share, people lose for 300, 400 votes. Total votes, less vote is 36,000 less votes in Himachal Pradesh in the entire state. Total vote, less vote is what? 36,000 votes. Really? So entire, yeah. So So basically, that is nothing in if you look at the whole- BJP lost by 0.9% Yeah, In in the Himachal? total vote share. yeah. That is If total we number count of votes. the NATO votes, Nota, sorry, independent MLA or independent candidates votes, I think if you put all together, BJP will go ahead. Okay. This, I think, dimension of the Himachal is a little bit different than Gujarat and other states, right? There is a pahadi area, there is a ground area, conditions are different, everybody's perspective is different in elections. So definitely will come back. Himachal has a history of changing a government every 5 years. Got it. And that is Vikram? also after some rebel BJP leaders. Right. I understand. So Vikram, I'll go to you on the ground now. Celebration full swing में चल रही हैं और ये सेलिब्रेशन विराम पे आएंगी या कॉन्टिन्यूसली चलती रहेंगी 2024 तक, या फिर ये विराम पे आकर के एक नया ग्राउंड आप सेट कर रहे हैं अब युद्ध के लिए, जिसे कहते हैं ना कि इलेक्टोरल लेवल पे एक युद्ध होने वाला है 2024 में. भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए तैयार रहता है, हर हमेशा तैयार रहता है. ऐसे कह सके तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए नहीं परंतु प्रजा की सेवा के लिए तत्पर रहता है और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है. मैं आपको 2014 और 2019 में ले जाना चाहता हूं, उसके बाद में मैं आपके साथ 2024 की हमारी स्ट्रेटेजी में आपसे शेयर करूंगा. 2014-2019 130 करोड़ लोगों की विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 282 सीट अकेले 30 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी को एक अकेला मैंडेट देती है जनता, और उस मैंडेट पे हम लोग खरा उतरते हैं और उसी विकास के कार्यों को लेकर हम 2019 में फिर जनता के पास जाते हैं और जनता इस बार हमें उससे भी बड़ी जीत 303 सीटों से हमको जिताती है. तो 2014 और 2019 में जिस हिसाब से जो हमारी जीत हुई और प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा, उसमें हम आपसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने लोक सेवा के, जन सेवा के इतने कार्य किए हैं कि हर एक तबका, हर एक लोग, हर एक वर्ग उनके कार्यों से प्रभावित है. और यही प्रभाव 2024 में दिखने जा रहा है. जिस तरह से गुजरात में 27 साल के बाद में एक कहते हैं कि भी एंटी इंकम्बेंसी जैसा होता है, पर नरेंद्र भाई विश्व के एकमात्र ऐसे लीडर हैं कि उनके सामने एंटी इंकम्बेंसी नहीं परंतु प्रो इंकम्बेंसी, कि हर बार वो चुनाव लड़ते हैं, जितना चुनाव लड़ते हैं वो उतने ज्यादा मजबूत होते हैं और वो एंटी इंकम्बेंसी प्रो इंकम्बेंसी में बदलती है, क्योंकि उनकी विकास की राजनीति, उनकी सबके साथ सबके विश्वास की राजनीति को लेकर हम चलते हैं और ये प्रो इंकम्बेंसी में बदलती है. तो 2024 के मैंडेट्स हैं वो भी कुछ रिकॉर्ड मैंडेट्स ही होंगे, ये गुजरात के परिणामों से सीधा सा जाहिर है. चलिए, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑफ कोर्स हम बात तो वैसे आज जो हम शो कर रहे हैं वो बीजेपी विक्ट्री सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं, जो एनआरआईज कर रहे हैं, लेकिन एक मैसेज है जो कांग्रेस की तरफ से जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा. तो भारत जोड़ो यात्रा जो है ग्राउंड पे चल रही है, अभी उसका असर कितना होगा कितना नहीं होगा तो और आने वाले इलेक्शंस बताएंगे. हिमाचल में उन्होंने कहा, हालांकि क्लेम कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है. मुझे आपसे इनपुट्स चाहिए. बीजेपी का कोई ऐसा प्लान है जनरली जहाँ नहीं, प्लान भी नहीं छोड़िए, चलिए प्लान की बात नहीं करते बीजेपी की, भारत जोड़ो यात्रा के पैरेलल्स में बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी आपको समझ में आती है जो ज़्यादा सक्सेसफुल है, या उसके एंटागनिज्म कह लो या एक कंपटीशन में कह लो? I think our party official from India can answer best from the party perspective, Right. because we are. तो विक्रम, मैं आपसे overseas ये here, सवाल so- पूछूंगी खैर कि भारत जोड़ो यात्रा तो चल रही है, ठीक है, हाँ जी. बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या जोड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा प्रजा के बीच रहती है, प्रजा के प्रश्नों का निराकरण करती है
और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रजवाड़ों को जोड़कर भारत को पहले ही जोड़ दिया है, भारत जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी ये भारत जोड़ो नहीं, ये कांग्रेस जोड़ो, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं, जमीन पर ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस को जमीन पर खंगाल रहे हैं। तो वो उनका कार्य है, विपक्ष है, वो अपना कार्य करे, पर भारतीय जनता पार्टी हर एक तबके को साथ में लेके चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये हमारा मंत्र है, नरेंद्र भाई मोदी का मंत्र है। और नरेंद्र मोदी जी सभी तबकों को साथ में लेकर चलते हैं। डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, उसका लाभ समाज के हर एक वर्ग को, हर एक इंसान को होता है, हर एक लोगों को होता है। इसमें कोई भी समाज, कोई भी लोग उस विकास से वंचित नहीं रहते हैं। विकास का कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो सबको छूता है और वो सबको बेनिफिट करवाता है। तो हम हमारी यही स्ट्रेटेजी रहेगी और हम यही स्ट्रेटेजी लेकर जनता के पास जाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बताइए, दोनों बोलना चाहते हैं, आप बोलिए। I will add something. Bharatiya Janata Party is a 24/7 political party. I don't want to talk about rivals. However, whoever wants to do any yatra, we don't do anything out of the blue. One day it's like, let's do this. It's a 24/7 politics, 24/7 Janhit, Jan Kalyan, and connected on a ground party 24/7. Thank you, Amar. So Modi ji did some road shows in Gujarat. They were Right. like, we have never seen those kind of road shows ever. I mean, the public, the people who are gathered for hours. I think it would be wonderful, and I would like to give my wish list to our Karyakartas in BJP that if any such Abhinandan Yatra, because that would be probably the next election would be the last election for Modi ji, because he himself has put a rule. So maybe if it would be there is a yatra, Abhinandan Yatra from Somnath to Jagannath Puri or Kashmir to Kanyakumari. अभिनंदन, चलिए, एक आभार यात्रा, एनआरआई that का would be इनपुट amazing. आपको मिल रहा है विक्रम? ये एनआरआई बोल रहे हैं यहाँ से। Similar road show should happen like they did. अभिनंदन यात्रा, यानी कि एक सेलिब्रेटरी मोड में कि हाँ अब जो है समय आ रहा है कि अब जुड़ें, बट आनंद के माहौल में जुड़ें। आई नो मेरे पास समय का अभाव है, लेकिन मुझे ये जानना ज़रूरी है विक्रम आपसे सबसे पहले कि किस तरीके के रिस्पॉन्सेज आपको मिले हैं वर्ल्ड वाइड एनआरआई से। मैं तो यूएस में हूँ तो हम यूएस से शो कर रहे हैं, बट और बाकी कंट्रीज से जो गुजराती समाज के जो लोग हैं, एनआरआईज हैं, कितना हर्ष है उनमें ये जो गुजरात की बीजेपी विक्ट्री हुई है, बीजेपी की गुजरात में विक्ट्री हुई है रादर, एंड व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस एंड व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स आर बीइंग प्लान्ड ऑल ओवर, कुछ आइडिया है आपको? एनआरआईज जब गुजरात आते हैं वो अपने गुजरात को देखते हैं, एक बदले हुए गुजरात को देखते हैं, बदले हुए भारत को देखते हैं। वो देखते हैं कि आज भारत एरोस्पेस टू एलपीजी, सैटेलाइट टू स्टार्टअप्स, टॉयलेट्स टू नया संसद भवन, बिल्डिंग रोड्स टू द बुलेट ट्रेन्स, एनसीसी कैडर टू द ड्रोन पॉलिसी, जब वो एक बदलते हुए भारत की तस्वीर देखते हैं तब उनको एक मन में सुकून आता है और एक प्रधानमंत्री जी की तरफ उनको और भी ज्यादा विश्वास आता है और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी भारत का सुकान संभाले। उसके लिए उन्हें जो भी करना है वो करना चाहते हैं और वो खुद भी जब भी वहां विदेश में जाते हैं तब अपना सर उनका गौरव से ऊंचा हो जाता है जब कहा जाता है कि भाई आप प्रधानमंत्री मोदी जी के देश से हैं, आप भारत से हैं, और जो वैल्यू, जो साख आज भारत की बड़ी है, और आज इंडिया इज द 5th वर्ल्ड्स हाईएस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हाँ, वो 5th मतलब इकोनॉमी है। हम 5 बिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे नेक्स्ट 5 इयर्स में 100 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। पीएम गति शक्ति योजना से हम पूरे भारत को जोड़ रहे हैं, सारे क्लस्टर्स बेस्ड इकोनॉमी हम लोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 25 इयर्स में वी विल बी द डेवलप्ड कंट्री। तो ये सारी जो बातें हैं वो सबको सम्मोहित करती है और वो सारा हम लोग ग्राउंड पे भी देखते हैं कि ये सारी चीजें हमें ग्राउंड पे भी दिखती जी विक्रम जी, सेलिब्रेशन के बारे में कुछ खबर मिली? अभी हम तो हमारा स्टूडियो न्यू जर्सी में है, ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में काफी अच्छी मेगा सेलिब्रेशन भी हो चुकी है। पूरे विश्व में जहां पर भी गुजराती और भारतीय भाई बसते हैं वहां पर ही गुजरात की ये लैंडस्लाइड और ये रिकॉर्ड विक्ट्री के लिए सभी जगह सेलिब्रेशन हुए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएई हो, सभी जगह भारतीयों ने और गुजराती खास करके गुजराती भाई बंधुओं ने खूब सेलिब्रेशन किया है। ठीक है, अगला मैसेज ये चाहिए मुझे अब एनआरआईज की तरफ से मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। 2024 के इलेक्शंस में किस तरीके की कंट्रीब्यूशन आप सोच रहे हैं
सक्सेस दिलाने के लिए बीजेपी को एक ग्रैंड सक्सेस, जो आपने कहा 400 प्लस की आंकड़े को पार करना है, व्हाट इज योर फोकस एरिया, वेयर डू यू वांट टू वर्क ऑन, हाउ द एनआरआईज कैन कंट्रीब्यूट टू दिस electoral victory if you are setting it up for yourself? Sure. So I'll take this first. Sure. NRIs or BJP supporter, they work on mainly two pillars. We do ground campaigning. A lot of people goes to India during elections and they go constituency to constituencies, villages, and they take the message of the BJP and government forward. And then there is another process here where we all do phone calls and we go to our native places, we call our relatives, friends, and we talk to them and we try to convince them. And there's a massive effort we do in every election. We'll continue that in 2024 to make sure we assure that BJP get 400 seats. Thank you. Nimesh, I know you have a bunch of suggestions as you were suggesting. How would they, like what are they, what would you like to recommend to the people out there on the ground, and क्या contribution आप सोच From रहे हैं? NRIs, as he said, like people go to India for canvassing, and I know in 2019 we were part of the group which got like almost 200,000 phone calls from here. So Really? there are like group of people, yeah. 200,000 plus 200,000. calls? We cover constituencies to constituencies. So Every state is divided, every area is divided. right. So People were it's a called- massive work effort. by people were NRI. calling, so many people, and hundreds of people are calling. Right. WhatsApp messages, phone calls, course, social media. There are assigned people and entire task force behind it. NRIs, and this is only America I'm talking about. And this I'm is all, sure yeah, this is all volunteer work. there might this be is many all groups like volunteer ours. work. People come forward and they ask themselves that we want to be part of this. Yeah, and there might be many groups like ours who are doing this kind of Exactly. work. Okay. So this is just one example. चलिए, समय थोड़ा कम है, लेकिन मैं विक्रम आपसे इनपुट्स लेना चाहूंगी. क्या आपकी रिक्वेस्ट रहेगी एनआरआई से हाँ, ये मेरी सक्सेस का NRI मोमेंटम मेंटेन करने के लिए कैसी सपोर्ट चाहिए 2024 को टारगेट करते हुए? हाँ, एनआरआई मित्रों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जिससे पूरे विश्व में कहीं पर भी किसी को भी कनेक्ट किया जाता है, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू ट्विटर. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा की जो प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री जी की जो भी पॉलिसीज हैं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए. और भारत की साख आज विश्व में कैसे बड़ी है और प्रधानमंत्री जी के रहते हुए कैसे भारत एक विश्व सत्ता बन सकता है, एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो सकता है, उसके बारे में आप सबको बताइए. और मैं 2-3 इनपुट्स मैं आज आपको देना चाहता हूं कि भारत में क्या क्या बदलाव आए हैं. इंडिया इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडिया. इंडिया इज नॉट कैरिंग इट्स baggages of the past problems. Now we are solving our problems, and now we are in era of the politics of performance. We have set behind the dynasty politics and the politics of appeasement. उसको हम लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया है. Now we are looking for the politics of performance. And अगर मैं आपको कहूँ कि everyone in India is contributing towards its economic development, its social development, and its cultural development. तो भारत का प्रत्येक नागरिक 130 करोड़ लोग आज मोदी जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट में अपना पूर्ण सहभाग दे रहे हैं. तो आवर कंट्री इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड मोदी जी हैज शोन टू द वर्ल्ड दैट डेमोक्रेसी कैन डिलीवर. And Thank you. To say one word for the Modi ji, he is the transformer and reformer of the new India. This is only the tagline I want to give. Salute to the Modi ji. He is the transformer and the reformer of the modern India, of the new India. Thank you so much. Thanks for all the valuable inputs, and of course the celebration as it continues. I wish you all the very best for your contribution to the motherland in one way or other. Electoral पॉलिटिक्स जो होती है, जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें हमारा एनआरआईज का जो रोल है आप निभाते रहिए और भारत को आगे बढ़ाते रहिए. आज का ये शो था. ऑफ कोर्स गुजरात की विक्ट्री, इलेक्शन जो बीजेपी की विक्ट्री थी वो हमने शोकेस की है, लेकिन अभी अगले सेशंस में बहुत कुछ डिबेट्स आनी बाकी हैं. तब तक इंतजार कीजिएगा. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच.